students to this physics class. Today we will study the numerical based on the reflection and refraction, which is very important, and this will work for you when you will go in a class 12 also, and there you will study about the optics. So for solving the numerical we need few more things to understand. Already few concepts I have told you regarding sign convection and all those things in my previous lectures. Now today I'll teach you how you can apply these symbols, okay, in the numerical of reflection and refraction. First of all, you should know few formulas, and you know first formula is the mirror formula, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Clear? That is the mirror formula. Secondly, what would be the magnification of this? M is equal to minus v upon u. Remember this, for mirror formula is minus v upon u, or for magnification, and similar equal to h2 upon h1, where h2 is the height of image upon height of object. One more thing is that relation between focal length and radius of curvature is r by 2. F is equal to r by 2 or r is equal to 2f. If convex is, then it is a positive, if it is concave, then it is negative. Regarding focal length, either it is mirror or lens. Either it is mirror or lens. For both, for convex lens it is positive, and for concave lens or mirror it is negative. For convex mirror or lens it is positive, for concave mirror or lens it is negative. Remember this. This was the entire formula to which we have used for mirror. For lens, what we will use? Only one change we will do. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Only one change. Magnification, for mirror it was minus v by u. Here only and only v by u. Formula is h2 upon h1. No change. Similar thing. One more formula we will get here, that is of refractive index. Refractive index is equal to speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Okay, we will start from here. N is equal to, what is the formula here? We will start the things from here. Listen, question is that if a glass slab having refractive index 4 by 3, question दिया है, समझिए इसको. If the refractive index of glass slab is 4 by 3, means what is given? N is equal to 4 by 3. So what would be the speed of light in glass slab? इस लाइट की स्पीड किस में निकालनी है? ग्लास स्लैब में निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या होगा? N is equal to C upon V. So 4 by 3 equal, C means speed of light, that is 3 into 10 to power 8 upon V is asking, C upon V. Clear? Very easy. How you can get it? 3 3 is 9. So V is equal to how much it will come? V you have to require it. So how will you get? 9 into 10 to power 8 upon 4. Solve it. That will, because 3 3 is 9 upon 4, that will come 4 2 is 8, 2.25 into 10 to power 8 meter per second. That is the speed of light in glass slab. One type of question we got. Though it is not in your syllabus, but still I will tell. Suppose that it is a glass slab kept in air. जब भी ग्लास स्लैब को हम एयर में रखेंगे तो हम उसे कैसे लिखेंगे ग्लास स्लैब का? बिकॉज अराउंड व्हाट इज द सेकेंड मीडियम, दैट इज एयर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लास स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसको बोलते हैं ANG. ANG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. मानो वैल्यू कितनी दे दिया है? 4 by 3. अब ये बोलता है कि इस ग्लास स्लैब को या किसी लेंस को वी आर इमर्जिंग इन अ वाटर, अब वाटर में डाल रहे हैं, तो पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको चाहिए. तो वाटर अगर यहाँ रखा है तो उसके सराउंडिंग क्या है? एयर है.
तो व्हाट वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सपोज इसको लिखते हैं ANW इक्वल, सपोज दैट इट इज गिवन ANG, मान लो आपको 3/2 दिया है, वैल्यू कोई ANG दिया है 3/2 और वाटर का दिया है 4/3। अब मालूम हो गया लेंस और स्लैब जो भी कह लो, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इमर्स्ड in a water having refractive index 4/3, so what would be the refractive index of glass with respect to water, क्योंकि जब हमने उसको पानी में डाल दिया ग्लास स्लैब को या लेंस को, तो वहाँ क्या रह गया, वाटर एंड ग्लास स्लैब, तो उसको बोलते हैं WNG, ओनली WNG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, याद रखना एक फॉर्मूला होता है ANG अपॉन ANW। तो ANG की वैल्यू क्या है बेटा, 3/2 है, ANW की वैल्यू क्या है, 4/3 है। सो यू कैन सॉल्व इट, वेरी सिंपल, क्लियर। व्हाट वैल्यू विल कम, 9/8। So when glass slab or lens will go in a water, then its refractive index become how much, 9/8। दोनों का अलग अलग दिया है, अगर उसको वाटर में इमर्ज कर दे तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मिल जाएगी। ये फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा। चलिए भाई, अब मिरर के फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, शुड आई रेज इट? ओके, ओके, अब न्यूमेरिकल समझिए। कॉनकेव मिरर की न्यूमेरिकली बात करते हैं हम। Object height of 10 centimeter is kept in front of a concave mirror having radius of curvature 40 centimeter at 30 centimeter distance. What would be the position, nature and size of image? न्यूमेरिकल किसी तरह भी आ सकता है। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो बेटा, इधर हम सब सिंबल रख दिए, यहाँ से हम निकालेंगे सिंबल्स। H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फिर बोला है ये केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज एक ऐसा मिरर है कॉनकेव है कि कॉनकेव में आर और एफ दोनों क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो ये फिजिकल टू फार्मूला आप क्या पढ़े हैं यहाँ, R/2, सो -40/2 दैट विल कम -20 सेंटीमीटर। एग्रीड? यस। बोला है इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। यू की वैल्यू कितना दिया है, 30। और एक बात दिमाग में रख लो भाई, यू कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है सिंगल लेंस और सिंगल मिरर के लिए, और यहाँ आपको सिंगल लेंस या सिंगल मिरर ही पढ़ना है। जब क्लास 12 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर और लेंस वर्क्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर अदर, तो वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, बट यू आर नॉट हियर। तो अभी जो आपके लिए है मैं उतना ही बताता हूँ। u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। पोजीशन v इज आस्किंग, चलो पहले यही निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है बेटा, 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है, -20, माइनस u कितना है, -30। when you will solve it, it will come 1/v equal to 1/-20 minus plus 1/30। LCM 60, 3 sa 2 sa 1/60, so v had come how much, you see what the value of v had come, how much, 60 centimeter. Okay, check one more. u was how much, u value you got it, how much it was that, -30 centimeter, u -30 beta na, and the minus become plus,
Okay, so listen, 60 is here, minus 2, this is minus 3 and this is plus 2. Minus 3 plus 2 will come minus 60, so we had come minus 60 centimeter. और आपको मालूम है इन कॉनकेव मिरर इमेज इज ऑलवेज फ्रॉम वेयर, फ्रंट, कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज कहाँ बनती थी बेटा, इधर ही तो कहीं बनती थी, ये फोकस से जा रही है और ये यहाँ से इधर ही कहीं बनती बनेगी सामने। बस एक केस है जब वर्चुअल इरेक्ट बनती है, जब पोल और फोकस के बीच रखी होती है ऑब्जेक्ट को। चलो बात करते हैं, वी मिल गया, पोजीशन मिल गया, नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ पे m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो माइनस वी बाई यू, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, v माइनस 60 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u माइनस 30 इक्वल h2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 10 सेंटीमीटर। सॉल्व इट, दिस माइनस वुड बी कैंसल, 2 जा 10 2 जा minus 20 centimeter. So H2 come how much? Minus 20 centimeter. Clear? Understood? माइनस क्या बता रहा है बेटा, H2 नीचे बन रहा है, किधर बन रहा है, माइनस ये बताता है, नेगेटिव साइड, डाउनवर्ड्स। इट मीन्स वर्चुअल images or real image, it is a real image and inverted image. तो नेचर पोजीशन सब कुछ मिल गया, क्या मिला, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी 20 सेंटीमीटर इज मेड एट 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, रियल एंड inverted. We got everything. That is a relation, a numerical regarding a concave mirror. Similarly, we can do the numerical based on the convex mirror also. Let's see. We will do it now or itself. An object is kept in front of convex mirror having focal length 20 centimeter at 10 centimeter front. अब देखो कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर दिया है, बोला है इससे 30 सेंटीमीटर अवे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 30 सेंटीमीटर। पूछा है व्हाट वुड बी पोजीशन एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सिमिलर फार्मूला फिर लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1/f minus 1/u। 1/f means 1/20 minus 30. So similar value what we have got there, we are getting here. Why? What happened here? Let's see. This minus become plus. LCM becomes 60. 23 ja plus 5/60. It means V equal to 12 सेंटीमीटर, बट वैल्यू इज कमिंग इन पॉजिटिव। क्या बताता है, ये बताता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनती है तो क्या बनती है, बिहाइंड बनती है, सामने नहीं बनती, और वो क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कैसे, प्रूफ करके देख लो। फार्मूला क्या होता है, यहाँ हालांकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब भी मैग्नीफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सो माइनस v की वैल्यू कितनी है बेटा, बताइए, v की वैल्यू कितनी हम निकाले हैं यहाँ पे, अब भी निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जो भी वैल्यू आएगी इमेज छोटा बनेगा, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। m की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड m की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, वेरी क्लियर। सो अगेन वी विल स्टडी वन मोर थिंग हियर, one more numerical from lens. Question, listen carefully. Convex mirror of a focal length
20 centimeter. Convex mirror, a focal length of 20 centimeter. लेंस की बात करते हैं. Convex lens have a focal length 20 centimeter. Image of an object is formed. मैंने f की वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. फिर बोल रहा है इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस. इसकी जो इमेज बन रही है, वो कहाँ बन रही है? 40 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू कितना दिया है बेटा? v की वैल्यू. इमेज बन रही है मतलब क्या दिया है? v की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर. अब बताओ तुम प्लस होगा कि माइनस होगा? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, उसने कहा है रियल इन्वर्टेड. फिर से सुनिए तब और समझ में आएगा. कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड 40 सेंटीमीटर. तो रियल इन्वर्टेड किस साइड बनेगा लेंस में? अपोजिट साइड बनता है, सामने बनता है. तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? पॉजिटिव. ये समझना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा v की वैल्यू. अगर ये बोलता है वर्चुअल इरेक्ट, इसका मतलब इसी साइड बन रहा है, तो v नेगेटिव हो जाएगा. तो u पूछा है. अब पूछा है व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. उल्टा पूछा है. इमेज दे दिया है, ऑब्जेक्ट पूछा है, तो फॉर्मूला फिर वही लगा लो, 1/v minus 1/u. Okay, here what would be there? Minus 1/u. So that what will come accordingly you can solve it. Okay, thank you, have a nice day.